Hello students, now we know that insurance is a contract between two parties. There are certain elements such as agreement, acceptance, consent of the parties. These all should be there in the insurance contract. But in spite of these elements, there are certain principles that are required to be followed essentially at the time of insurance contract between the parties. So what are these principles? We are going to discuss today in this video lesson. So we are discussing about principles of insurance. So first principle we have principle of utmost good faith. This topic we have already covered in features 2, principles of utmost good faith. It means there should be good faith between the insurer and the insured. Both the parties, because there are two parties that are involved in insurance contract, so both the parties, they should have good faith within them. So insurer and insured, both of them should disclose everything to each other. If we take the example of insurance company, which is insurer, now you know that it is insurer. So the insurance company is the insurer and the company should detail everything that are in the contract should be told to this person about the contract, everything that is under the contract. So this insurance company is responsible to disclose everything that is in the insurance contract. So this is required for insurer, that means insurance company, to disclose every term and condition to the insured. So this is insured. The person who is getting insured is known as insured, and this person is also required to do or to act upon the terms and conditions described by insurer, that means insurance company. So this person is liable to tell everything that relates to the insurance contract to the insurance company. So everything from two parties, these both parties should be disclosed to each other before entering into insurance contract. For example, if this person is suffering from a disease from 3 or 4 years and he get himself insured from insurance company, and he is not telling about the disease. So whenever it will be disclosed to the insurance company, the contract will be cancelled. So it will be void contract, it will be of no use, the contract can be broken by the insurance company as well and the insured as well. Because if the insurance company is not telling everything to the insured, then insured has right to break the contract, to breach the contract, and insurance company has also right, because this person is not telling everything, every point is not disclosed by this person to the insurance company. So disclose the information to each other, otherwise there will be breach of contract. तो प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंश्योरेंस कंपनी अप्लाई कर रही है उनको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा इंश्योर्ड को, एज वेल एज जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है उसको भी डिस्क्लोज करना होगा एवरी इंफॉर्मेशन, because if he is taking life insurance then he should
disclose each and every concept about the diseases he is suffering from. So अगर इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है कि कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइड है, दैट मीन्स फेक कॉन्ट्रैक्ट है और ये तोड़ा भी जा सकता है किसी भी तरफ से, मे बी वो इंश्योरेंस कंपनी हो एंड इंश्योर्ड एज वेल, वो दोनों में से कोई भी इसको कॉन्ट्रैक्ट को फेक कह सकता है और इनको फॉलो करने से मना भी कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. दिस प्रिंसिपल सेज दैट the insurer and insured, we have two parties. The insured is getting insured from the insurance company, so there should be insurable interest. Insurable interest should be there with the property, if we are getting the property insured from the insurance company. अगर हम इंश्योरेंस कंपनी से अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा रहे हैं, दैट मीन्स एक पॉलिसी के अंडर अगर हम आ रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी के लिए हम पॉलिसी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस प्रॉपर्टी के साथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाता है और बाद में उनका डाइवोर्स हो जाता है, उस केस में जो हस्बैंड है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वाइफ के साथ वो ब्रेक हो जाएगा. दैट मीन्स कि उसका इंटरेस्ट वाइफ में तब तक ही था जब तक इंश्योरेंस करवाया एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे. बट अगर वो डाइवोर्स दे देता है अपनी वाइफ को, उस केस में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा. सो अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है तो मुझे उसके साथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज इंश्योरेबल इंटरेस्ट विल नॉट बी देयर. तो जो भी हम ये जो भी हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसके साथ हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. तो अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, दैट मीन्स कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, पहले हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया, उस टाइम पे उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, बट आफ्टर द डाइवोर्स जब उसको अपनी वाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी उसको उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है. सो अगर उसकी एब्सेंस है, एब्सेंस मीन्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट की एब्सेंस है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज द केस वेयर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज फॉलोइंग. नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इट मीन्स इंडेमनिटी मीन्स लॉस, कवरिंग ऑफ लॉस. तो ये प्रिंसिपल ये कहता है that the main objective of the insurance contract is to cover the loss of the person who is getting insured himself through the insurance company. So the main objective is to covering of loss but not the earning of profit. तो अगर objective is to compensate insured, तो हमने compensate करना है insured को. For example कि यहाँ पे अगर इंश्योर्ड जो है वो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, दैट मीन्स कि वो लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, उस केस में ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा, क्योंकि लॉस जो है पहले से हम लॉस का एस्टिमेशन नहीं ले सकते. लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो हम पहले से अपनी लाइफ का एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि हम कब तक हमारी डेथ होगी. सो उस केस में ऑब्जेक्टिव इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है कॉम्पनसेट करना इंश्योर्ड को, और उसके लिए हमें एस्टिमेशंस लगाने होते हैं ताकि उसका लॉस कवर हो सके. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू कवरिंग द लॉस. सिक्योरिटी ऑफ लॉस, मेन फंडा इज सिक्योरिटी ऑफ लॉस. दैट मीन्स the person's loss should be secured, but the earning of profit
it is not there according to the principle of indemnity. ये रूल ये कहता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ लॉस को रिकवर करना है, लॉस को कवर अप करना है इंश्योर्ड के, बट अर्निंग करना नहीं है। एंड लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम कोई भी एस्टिमेशन नहीं लगा सकते लॉस का, तो उस केस में इंडेमनिटी वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। According to this principle, insured should make every effort to avoid the risk or avoid the loss. For example, if I have go down and it gets on fire and I am not making any effort because the go down is insured, so it is wrong. I should make efforts to save the go down or to minimize the risk or loss because of this fire. So insured should try to minimize the loss of property. So this person is calling to fire brigade because he is making efforts to save the go down. So for loss he is trying to minimize the loss. This is right. Whereas if we see on the opposite side of this, even he is not doing anything, he is not doing any effort to save the go down. So this is wrong. So the insured should try to minimize the loss of the property. तो उसको अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए हर एफर्ट्स करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता हूँ और मुझे लॉस तो रिकवर हो ही जाएगा। Next principle, we have principle of contribution. It means if a person is getting insured from 2 or more companies, then after the mishappening he will receive the amount, the compensation amount from either one of these companies or approximately from these companies. फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये पर्सन है और इसने इंश्योरेंस करवाया कंपनी 1, कंपनी 2 एंड कंपनी 3 कंपनीज से ये एक ही चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा है, देन वो क्या करेगा, या तो उसे ये कंपनी कंपनसेशन देगी या फिर ये तीनों में से कोई भी एक उसे कंपनसेट करेगा। और एक ऐसा है केस, सेकंड केस ये है कि इन तीनों कंपनीज को प्रोपोर्शनेटली, दैट मीन्स कि रेशो में, फॉर एग्जांपल कि ईयर 2, 3, 4 की रेशो में इनको अमाउंट दे रहा है प्रीमियम, और इसी रेशो में फिर वो कंपनसेशन की रिकवरी इनसे ले सकता है, और कंपनीज भी लायबल हैं इनको इस पोर्शन में देने के लिए। बट ये अप्लाई होता है सिर्फ इंडेमनिटी के केस में, दैट मीन्स इफ वी हैव जनरल इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल मैरिन इंश्योरेंस and other insurance, we have fire insurance and some other insurance, but it is not applicable in the case of life insurance. अगर लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये पर्सन 3 कंपनीज को अप्रोच करता है, तो मिस हैपनिंग के केस में या फिर मैच्योरिटी के केस में जो भी पहले होता है उस केस में ये इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड कर सकता है फुल अमाउंट की। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर वो 3 कंपनीज को अप्रोच करता है, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कोई और इंश्योरेंस करवाता है, देन वो प्रोपोर्शनेट उनसे ले सकता है या फिर किसी भी एक कंपनी को वो अप्रोच कर सकता है, कोई भी एक कंपनी लायबल होगी, इन तीनों में से कोई भी, तो वो उनकी अपनी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। So in this case, if insurer is there and insured is there, so the insurer company, next we have insured. So the person, he is getting insured from this company, and whenever the mishappening is there, whenever mishappening occurs, the compensation he is receiving from the insurance company. So after the compensation, after receiving the compensation, when he is receiving the compensation from the company,
उसने पैसे ले लिए कंपनी से, देन what he will do, the property which he was going to compensate, the property which was under the contract, under the insurance contract, that property will belong to the insurance company after the compensation was paid through the insurance company to the insured. तो अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेशन दे देती है तो जो प्रॉपर्टी के लिए इसने इंश्योरेंस करवाया था तो वो प्रॉपर्टी अब कंपनी को बिलोंग करेगी. दैट मीन्स कि कंपनी हैज राइट आफ्टर द कंपनसेशन गिवन टू द पर्सन. So when the insurance company is covering the loss of this person, now the company has every right to the property. So प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि प्रॉपर्टी, इसमें एक एग्जांपल देती हूँ आपको. फॉर एग्जांपल कि अगर इस पर्सन की कार थी तो वो कार एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई, देन इंश्योरेंस कंपनी से इसने क्लेम भी ले लिया. एंड इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के बाद वो क्या करता है कि उसको कार को इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना. तो उस केस में ये क्या करता है कि उसको कबाड़ी वाला के पास जाके वो कार को सेल कर देता है. तो 1 लाख तो वो वहाँ से भी अर्न कर रहा है. बट रूल ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी ने उसे कॉम्पनसेशन दिया है, बियॉन्ड दैट कॉम्पनसेशन ही कैन नॉट रिसीव एनी इनकम थ्रू द प्रॉपर्टी दैट ही इज गेटिंग इंश्योर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. तो उस केस में ये कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी से अर्निंग नहीं कर सकता अगर वो कॉम्पनसेशन रिसीव कर लेता है. नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज. वी ऑल नो दैट देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. सो द इंश्योरेंस पॉलिसी इज देयर, द एग्रीमेंट दैट इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी, द रिटन टर्म एंड कंडीशंस which are written here in the agreement. So all the term and conditions which are in the insurance policy, these are applied to the insured as well as the insurer. So all of the term and conditions which on which these two persons, this person and this company are agreed, these are written in the agreement. तो एग्रीमेंट में वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, वो सारे कॉजेज लिखे जाएंगे कि जिनके लॉस, जो लॉस के कॉजेज हैं, जिनके अगर होने के टाइम पे इस पर्सन को इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा, तो वो कॉजेज सारे यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे जो कि अप्लाइड हैं. दैट मीन्स कि वो कॉजेज जो अप्लाई होते हैं कि किस किस केसेस में उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, वो सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे एग्रीमेंट में. नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ वारंटी. सो यहाँ पे हमें पता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं और वही फॉलो होंगे. सो वी हैव एक्सप्रेस वारंटी एंड इम्प्लॉयड वारंटी. दैट मीन्स एक्सप्रेस वारंटी मीन्स कि जो भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा हुआ है वही एप्लीकेबल होगा, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. इम्प्लॉयड वारंटी ये कहता है कि सपोज अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हो, देन एक नया कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, देन ये जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड होगा, ये फेक होगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा. सो कुछ चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं. दैट मीन्स यू हैव टू राइट हियर इन द इंश्योरेंस पॉलिसी. These are the term and conditions that are applicable in the case of insurance contract, and some things are implied. That means these are applied in case these are not followed. अगर ये फॉलो नहीं होंगी तो ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं. तो कुछ नया आता है तो उस केस में वो अप्लाई होगा तो पुराने वाला वॉइड हो जाता है. So these are the principles of insurance.